Okay, so my dear students, I'm happy that we are done with the first chapter. So today we will be starting with the discussion of the questions from the past papers. That is very important. My teachers from whom I have studied, from whom I have taken that professional training, he always used to say this, that if you cover up the questions, if you cover up the whole chapter, if you cover up the whole chapter from the book, the content, I did my O levels now from St. Anthony's main branch. So he used to say that if you cover your chapter, your content from the whole book, still you get a B or a C. But if you do it from the past papers, 5 years, you have the chances of getting an A. But if you do it from the past 10 years, you get a chance of getting an A star. Okay. So similar is the case with your syllabus as well. So let's start without wasting any time. Okay, so let us see that what is actually happening. The very first question, there are certain questions. What is a chemical reaction? मैं जल्दी से questions पढ़ देता हूँ आपके लिए ताकि आपको understand हो जाए कि what we are going to do. और next slide के अंदर in detail we have the answers as well, to the point, according to the paper pattern. ठीक है बेटा, पेपर पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसके आंसर्स भी पेपर पैटर्न के मुताबिक हैं, बिकॉज दीज बुक्स आर रिटन बाय द एग्जामिनर्स ऑफ द पंजाब टेक्स्ट बोर्ड. ओके, एक्सप्लेन द टर्म्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो क्या होते हैं. देन व्हाट इज मेंट बाय अ कंप्लीट रिएक्शन एंड एन इनकम्प्लीट रिएक्शन, दैट वी विल आल्सो स्टडी. व्हाट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाट इज मेंट बाय फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आर देयर, गिव द डिफरेंस बिटवीन देम. Okay, why reversible reactions never complete, reversible reactions जो है why they never complete. Then why the amounts of reactants and products do not change in a reversible reaction. This question will be addressed properly. What is the relationship between active mass and the rate of a reaction? Then the question is, state the law of mass action, define equilibrium constant, write the two macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. These slides you will be given, don't worry. ठीक है, आपको आपके ग्रुप के अंदर we will send it to you. If a reaction has large value of Kc, will it go to completion and why? Then what is the importance of equilibrium constant? Then why the amounts of reactants and products do not change in a reversible reaction? ये वही क्वेश्चन है जो पहले रिपीट हो चुका है. देखिए ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से पेपर आता है. ओके, सो इनको जरा ध्यान से समझिएगा. बी को क्या कहते हैं, जरा अटेंटिव होके, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता कि सर इसकी जरा ट्रांसलेशन बता दें या इसको समझा दें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर. ओके, define the term active mass. What is active mass? We will study it as well. Derive the relation for equilibrium constant for the following reaction. I told you that this is a compulsory question. Okay, कोई सवाल आता है या नहीं आता, but this question is compulsory. This question comes on a compulsion basis. Okay, Kc की वैल्यू को डिराइव करना, deriving the equilibrium constant. Then we will study if the numerical value of Kc is neither small nor large, then why the reaction is at equilibrium state. ये concept हम लोग already पढ़ चुके हैं, but we will study from a paper perception. ठीक है, and dynamic equilibrium किस तरह establish होता है. Then why equilibrium state is attainable from either way. Either way का मतलब कि या तो right side से, product side से equilibrium state is attainable, या from the left side equilibrium state is attainable. How can you know that a reaction has equilibrium, has achieved an equilibrium state? How we can know? Then derive the relation for equilibrium constant for the following reactions. Okay, ये भी equilibrium constant के reference से हमने बात करनी. मैंने सारे questions इसलिए पढ़ दिए, इसलिए I have read all the questions for you so that you might take आप एक picture अपने mind में बना लें. Okay, कि इसको सॉल्व किस तरह करना, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड्स में क्वेश्चंस के जो आंसर्स जो हैं, क्वेश्चंस तो लिखे हैं लेकिन आंसर्स जो हैं आगे पीछे हैं. लॉन्ग क्वेश्चंस वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट बच्चों. जहां से नहीं समझ आता वहां से आपने मुझसे पूछना है. ठीक है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? A chemical reaction when two or more than two substances after a certain chemical change are converted into some new substances which are entirely different from the original substances. यानी कि A और B ने जब रिएक्ट किया तो उन्होंने A डैश और B डैश नहीं बनाया, उन्होंने C plus D बनाया. This means that the products that are formed are entirely different from the reactants. ठीक है,
जो डॉटर प्रोडक्ट्स थे, जो डॉटर प्रोडक्ट्स थे, दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मेन रिएक्टेंट्स, ठीक है। अपने पेरेंट रिएक्टेंट से जो डॉटर रिएक्टेंट्स थे वो दे वर इंटायरली डिफरेंट, ओके। इसको हम कहते हैं अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। व्हाट हैज अकर्ड? अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में जब भी इन अ केमिकल रिएक्शन, अब चूंकि हमें पता चल गया है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, so we will say in a chemical reaction the substances that combine are called reactants, and in a chemical reaction the substances that are formed that are entirely different from the chemical reaction, from the substance that are being what we say कैसे कहेंगे इसको, हाँ, that are combining, उनसे जो है वो different है, उनको हम कहते हैं product. I'll repeat it again. Reaction, product, reactants. What are reactants? Are in a chemical reaction the substances that are combining chemically, जो combine कर रही हैं, उनको हमने reactants कहा। फिर product क्या हुए? जो उस combination के result के तौर पर, the substances that are made as a result of the combination of the substances are called products, and they are entirely different, from that of the reactants. ये समझ आती है बच्चों बात? If you have understood this concept, then thumbs up. शाबाश, जल्दी से, be quick. Reactant और product का concept जो है वो आपको hopefully समझ आ गया है. Okay. What is meant by a complete reaction and an incomplete reaction? तो complete reaction क्या होता है बेटा? A complete reaction is one in which reactants are completely converted into products. Reactants are completely converted into products. ये देखिए स्टेप वाइज चल रहा है। पहले उसने कहा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो आपने समझ लिया। फिर सवाल आया कि व्हाट इज अ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट, यू अंडरस्टूड दैट एज वेल। देन द क्वेश्चन हियर इज दिस नाउ कि व्हाट इज मेंट बाय अ कंप्लीट रिएक्शन एंड व्हाट इज मेंट बाय एन इनकम्प्लीट रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। तो फिर इनकम्प्लीट रिएक्शन क्या होता है? एन इनकम्प्लीट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, आर नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन। व्हाट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन? आप सबको पता है कि दो किस्म के रिएक्शन थे, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन था, सॉरी, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या था? एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स। इसकी मिसाल ऐसी है, ए और बी जो हैं दे आर कंबाइनिंग टू गिव सी एंड डी, बट सी एंड डी आर नॉट कंबाइनिंग टू गिव बैक ए एंड बी. So this is a perfect example of an irreversible reaction. Okay, it's a perfect example of an irreversible reaction. फिर से repeat कर देता हूँ, a reaction in which reactants do combine to form products, but products are not recombining to form back reactants, is called irreversible reaction. क्या कहते हैं इसको? Irreversible reaction. So फिर reversible reaction क्या होता है? Reversible reaction, a chemical reaction in which reactants combine to form products, and products are again combining, and products are again recombining to form reactants. उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जो फॉरवर्ड भी जाता है, जो रिवर्स भी आता है। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की एक और डेफिनेशन है ये भी कॉन्सेप्चुअल है, ये भी क्लासिकल डेफिनेशन कि a chemical reaction which proceed in only one direction is called irreversible reaction. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जो प्रोसीड करता है उसको हम कहते हैं irreversible reaction. Okay, then what is meant by forward and reverse reactions? Forward reaction in a reversible reaction when reactants combine to form products, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन किसको कहते हैं? रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। एंड व्हाट इज देन अ रिवर्स रिएक्शन? व्हेन प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। उस जब रिवर्स जा रहा है ना, लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहा है तो रिवर्स जा रहा है, और लेफ्ट से राइट आ रहा है तो उसको हम
फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फिर सवाल आता है कि व्हाट इज मेंट बाय एन एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या था? मैं अपने जब ये हमने सीरीज स्टार्ट की, ऑनलाइन लेक्चर्स की, इस चैप्टर की सीरीज के स्टार्ट में आई टोल्ड यू व्हाट इज एक्चुअली एक्टिव मास। द टर्म एक्टिव मास रिप्रेजेंट्स the concentration in mole per dm cube of the reactants and the products for a dilute solution expressed as square brackets. Active mass जो कि participate कर रहा है reaction में। Classical definition क्या है कि the term active mass represents the concentrations in, concentration की unit क्या थे? In mole per dm cube, mole dm minus 3, मोल पर डीएम क्यूब इसको कहते हैं, और रिएक्टेंट्स भी मोल पर डीएम क्यूब में ही होंगे, और इनको रिप्रेजेंट किस तरह हमने किया था? स्क्वायर ब्रैकेट से। किस तरह किया था बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट से। अब याद आ रहा होगा आपको कि हमने इसके यूनिट्स भी कैलकुलेट किए थे और हमने एक्टिव मास को भी देखा कि व्हाट इज एक्चुअली एक्टिव मास। देन डिराइव द रिलेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जरा रिएक्शन देखें, नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ और अल्टीमेटली गिविंग व्हाट? 2NO। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है बड़ी इजी बन जाएगी, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट और उसका कोफिशिएंट एज पावर चला जाएगा ओवर रिएक्टेंट N2 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस O2। ये अब समझ आ गया आपको ये कैसे बनाया बच्चों? थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो आप मुझे बताएं कि इफ यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड जी, शाबाश बेटे, शाबाश। ओके, यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। सो इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना तो बड़ी है ना तो छोटी है Kc की वैल्यू, देन व्हाई द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इसकी मिसाल ऐसे ही है, if the value of Kc is neither small nor large then such reactions have comparable amounts। ये टर्म हमने सीखी थी ये गालिबन लास्ट लेक्चर के अंदर। कंपेरेबल अमाउंट्स होती हैं, क्या होती हैं? कंपेरेबल अमाउंट्स, जिसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो राइट को भी प्रोसीड कर रहा है, रिएक्शन जो है वो लेफ्ट को भी प्रोसीड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है आपकी जो स्टेट है इट इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या है? इट इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, ना तो Kc की वैल्यू बड़ी है ना तो Kc की वैल्यू छोटी है, तो आपने ये टर्म बोलनी है, इट इज एट द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये तो हमें पता है, बट द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल, दे आर कंपेरेबल। ओके, शाबाश। राइट द यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। अब एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन सी होती है बेटा? एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, ओके, नोबल गैसेस आर देयर। तो वो कहता है व्हाट इज द एप्लीकेशन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स में, कैसे जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम इस्तेमाल करते हैं। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस आर वेरी मच यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन की एग्जांपल अगर आप लेते हैं, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर है बड़ी अच्छी 78% गालिबन इट इज देयर इन द एटमॉस्फेयर, 78%। ओके, तो दिस मीन्स दैट व्हाट इज हैपनिंग, नाइट्रोजन से अमोनिया बनती है, ठीक है, अमोनिया से जो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनते हैं। ये जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं ये आपके जो है नाइट्रोजन से बनते हैं। नाइट्रोजन किससे बनती है? अमोनिया किससे बनती है? नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर है। फिर ऑक्सीजन की एग्जांपल लें, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड which is further used to manufacture king of chemicals sulfuric acid। पेपर में सवाल आ जाता है कि what is called the king of chemicals, so sulfuric acid is called the king of chemicals। this means कि sulfuric acid बना सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड बना ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन कहां से हमें मिलता है? 21% ऑक्सीजन जो है वो आपके किसके अंदर है? एटमॉस्फेयर के अंदर है। सो दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ नेचुरल एटमॉस्फेरिक गैसेस, और उनसे जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, उनसे जो है डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो बन रहे हैं। हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कि हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। सो व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम?
we need to understand it as well. When the rate of forward reaction equal to the rate of reverse reaction, and the time comes when the rate of reverse reaction, जिस स्पीड से रिवर्स रिएक्शन आ रहा है उसी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन भी जा रहा है. This means that the rate at which the reactants are combining to form products, it is same to the rate at which products are combining back to the reactants. उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. पेपर पैटर्न से इसको देखते हैं क्या कहते हैं. If a reversible reaction is allowed to continue for considerable time without changing the conditions, and rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction at that time, उस specific time के ऊपर dynamic equilibrium is established. उसको हम कहते हैं dynamic equilibrium. Okay? Why equilibrium state is attainable from either way? Either way का मतलब होता है right side से भी आप equilibrium attain कर सकते हैं, left side से भी you can attain the equilibrium. तो why? How? क्यों? So question is this. So answer भी इसका बड़ा टेक्निकल है. The constant, अब आपको पता है, अभी आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम. तो चाहे हम राइट साइड से शुरू करें रिएक्शन को, चाहे लेफ्ट साइड से हम रिएक्शन को शुरू करें, द आइडिया इज द सेम. इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड. So this is the concept of why equilibrium is attained from both sides. This means the concentration of species at equilibrium stage attains the same values whether we start from the left backward direction or from the forward direction. The idea is the same. How can you know that a reaction has achieved an equilibrium state? ये हमें कैसे पता चलता है बेटा कि रिएक्शन ने जो है इक्विलिब्रियम स्टेट जो है अटेन कर ली है. सो ये तो बड़ा सिंपल है. इफ द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड becomes equal to reverse, then reaction is said to be in equilibrium state. और हमें Kc की वैल्यू से भी पता चल जाता है. ठीक है, Kc की वैल्यू अगर नॉर्मल है, कंपेरेबल है, तो हमें इससे पता चलता है कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट. Qc से भी पता चलता है हमें कि जब Qc इक्वल टू becomes equal to Kc, reaction quotient becomes equal to the equilibrium constant. So this means that reaction is at equilibrium. तो ये तीन चीजों से हमें पता चलता है, या तो उसके Kc की वैल्यू से जो कि कंपेरेबल होगी, अगर वो हम कैलकुलेट कर लें तो उससे हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, सेकंड बात हमें पता चल जाए अगर Qc की वैल्यू से कि Qc अगर Kc के इक्वल हो जाए तो भी रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम. ओके, यहां तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर. शाबाश जी बच्चों, ऑल क्लियर? शाबाश शाबाश, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर, वेरी गुड टाइम. ओके, एक्टिव मास हो गया. ओके, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर बात करते हैं. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन इज डिफाइंड एज द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, द रेट at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate of reaction is directly proportional to the product of their active masses. ठीक है बेटा, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of their active masses. Okay, so this is the concept which we are going to study. So define equilibrium constant. Define equilibrium constant. Okay, this is another question कि what is an equilibrium constant? Equilibrium constant is that concept कि ratio of the product of concentration of products raised to the power of coefficients to the product of concentration of the reactants raised to the power of the coefficients as expressed in the balanced chemical equation. इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसको जरा देखते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है. A प्लस, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसको, B
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का स्टेटस C प्लस D. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब रेट कैसे बनता है इसका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का Kc की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट C raised to the power of its concentration coefficient D raised to the power of its coefficient over reactants A raised to the power of its respective coefficient and B raised to the power of its respective coefficient. इसको उसने कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसकी ये दिस इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यहां तक समझ आ गई? ये रिपीट करूं? जी शाबाश, क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताएं जी. ओके, राइट डाउन टू मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट डाउन टू मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम के हमने दो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, जिसमें से एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम एनी साइड. ठीक है, क्लोज सिस्टम में होता है और इधर साइड से ये अटेनेबल होता है. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. एक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो है रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन जो है स्टॉप नहीं करता, और ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. लेफ्ट से वो राइट को जा रहा है तो दूसरा जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ राइट टू लेफ्ट आ रहा है. This is called reaction is proceeding but in opposite directions. Write two characteristics of reversible reactions. Reversible reactions के दो characteristics क्या हैं? पहला characteristic है product recombine to form reactants. Product जो है वो recombine करते हैं reactant बनाने के लिए. ठीक है, reversible reaction का बता रहा हूँ. A और B जो है what are they doing? They are going to C and D. So product is recombining to form reactant. पहला characteristic reversible reaction का ये है. दूसरा characteristic क्या है? दूसरा characteristic ये है they proceed in both directions. देखिए ये reversible reaction इस left to right भी जा रहा है और reversible reaction right to left भी आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि reversible reaction proceed in both directions. Okay, so this means कि रिवर्सिबल रिएक्शन का पहला जो है प्रोडक्ट्स जो है रिकम्बाइन करते हैं रिएक्टेंट्स बनाने के लिए और ये दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड कर सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन? एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? ये भी हमने गुफ्तगू की है बड़ी डिटेल के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन. इट इंडिकेट्स टू व्हिच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स are converted into products. किस हद तक जो है reactants products में convert हो रहा है उसको हम कहते हैं extent of a chemical reaction. To what extent, किस हद तक जो है वो reactant जो है वो product में convert होता है. It indicates how far a chemical reaction proceeds before establishing equilibrium state. कितनी दूर तक जो है reaction जा सकता है ये हमें कैसे पता चलता है? Extent of a chemical reaction. How far a chemical reaction can proceed, we come to know from the idea of extent of a chemical reaction. Then next question, if a reaction has large value of Kc, will it go to completion and why? Those reactions that have large value of Kc proceed almost forward, so more of the products are required to attain equilibrium. ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की तरफ ये जाएगा. ओके, इसको हम क्या कहेंगे? राइट साइड पे Kc की वैल्यू जो है ये अगर लार्ज होगी तो राइट साइड की तरफ रिएक्शन जाएगा. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इसके ऊपर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि देयर आर टू इंपॉर्टेंसेस ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या थी? इससे हमें एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पता चलता है. सेकंड, इससे हमें डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पता चलती है. एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन and direction of a chemical reaction we come to know
from this equation, from the value of Kc. Next, why the amounts of reactants and products do not change in reversible reaction? Products की amount और reactants की amount क्यों नहीं change होती एक reversible reaction के दौरान? It is because of dynamic equilibrium, जो कि हमने पढ़ा है already कि the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. So that is the biggest reason that the amounts of reactants and products do not change during a reversible reaction. ठीक है, किसकी वजह से? डायनामिक इक्विलिब्रियम की वजह से. और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, how many types of chemical equilibrium are there? There are basically two types. Static equilibrium होता है और dynamic equilibrium होता है. So static equilibrium क्या होता है? When reaction ceases to proceed, जब reaction stop कर जाता है, अपने आप को restrict कर लेता है, रोक लेता है, आगे नहीं बढ़ता, उसको हम कहते हैं static equilibrium. Static है ना, static का मतलब रुका हुआ, जो कि ना तो फॉरवर्ड मूव कर रहा है ना तो रिवर्स मूव कर रहा है. इट हैज स्टॉप्ड इटसेल्फ, इट हैव व्हाट वी से, इट हैव सीज्ड इटसेल्फ टू अ सर्टेन पॉइंट. उसको हम कहते हैं क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. सो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो स्टॉप नहीं करता. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. रिवर्सिबल रिएक्शंस आपको पता है क्यों नहीं कंप्लीट होते? क्योंकि ड्यू टू डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. ये अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. व्हाट इज द रिलेशनशिप? इससे पहले ये वाला सवाल, व्हाई द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज? अगेन वही कॉन्सेप्ट है, डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम की वजह से जो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट चेंजिंग इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन? आखिरी सवाल के एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप है? व्हाट इज द लॉजिक? ओके, व्हाट इज द लॉजिक बिटवीन एन एक्टिव मास एंड अ रेट ऑफ रिएक्शन? सो एक्टिव मास क्या करता है? एक्टिव मास रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब एंड इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. ये शुरू में हम पढ़ चुके हैं. जबकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम. जब भी रेट का जिक्र आता है बेटा, तो हमेशा वो चीज जो होती है टाइम से डिवाइड होती है. जैसे कि स्पीड में आप पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो स्पीड का मतलब है रेट ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ठीक है. जब भी रेट का जिक्र आता है, रेट ऑफ चेंज, तो चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस को टाइम से आप डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. उसको किससे आप डिवाइड कर देते हैं? टाइम से डिवाइड कर देते हैं. सिमिलर इज द केस. रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये कॉन्सेप्ट है आपके जो है लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन और जो है एक्टिव मास का क्या लिंक है. दिस इज द रिलेशनशिप. ओके.